Faisal is an old friend of mine, and he is a diplomat, American Board of Psychiatry and Neurology, and he is a practicing psychiatrist in Karachi, and he's been practicing for the last 13 odd years here. And he's also a travel enthusiast, and we'll talk about that later. तो जो केसेस की मैं बात कर रहा था, उसमें से एक केस तो ये था कि जी जब मैंने काम शुरू किया था नया कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, तो मुझे याद है एक कॉलीग होता था हमारा, थोड़ा सीनियर था हमसे, वो he was supposed to launch a product in a month's time. Brand marketing का आदमी था, and he was supposed to launch the product, and then it was clearly visible to everyone in the organization that there is something going on. एक महीना रह गया था उसके पास, और he was running around like a headless chicken, day in and day out. सुबह में आता था तो सुबह को सबसे पहले मुझे दिखता था वो, जब मैं जा रहा होता था वापस ऑफिस से तो वो बैठा होता था. तो ये कोई एक महीना चक्कर चला उसका, और वो बेचारा he was under a lot of stress apparently. प्रोडक्ट लॉन्च का जो दिन था, उस लॉन्च के एक दिन पहले पता चला कि the guy fainted inside the office and apparently was admitted to the hospital. अगले दिन जो प्रोडक्ट लॉन्च थी, जिसमें उसको कोई 200-250 लोगों को, इंटरनल कस्टमर्स को प्रोडक्ट लॉन्च प्रेजेंट करनी थी, he couldn't do it. His line manager was supposed to present it. तो वो जो पूरे एक बेचारे की पूरे एक महीने की मेहनत थी, वो सारी मेहनत जो थी उसकी वो जाया हो गई. और अपेरेंटली वो बंदा, मैं तो नहीं जा सका उसको देखने के लिए, लेकिन मैंने सुना ये कि he was hospitalized for 2-3 days and then he remained on antidepressant for some time. महीना भर के लिए ऑफिस से गायब हुआ, एंड देन कोई तकरीबन कोई एक महीना 4-6 महीना वो एंटीडिप्रेसेंट मेडिसिन के ऊपर. तो ये केस, that's sad. हाँ, इट्स वेरी सैड. और इस तरह के एक या दो केसेस मैंने और देखे. 25 साल मुझे हो गए काम करते हुए. I've seen people suffer. तो ये जरूरी इसलिए था कि हमारी जो गुफ्तगू आज की वर्क लाइफ बैलेंस कैसे अचीव करना है और क्यों डिसरप्ट होता है, उसके लिए केस जरूरी था. तो बिफोर आई बिगिन, एज अ साइकियाट्रिस्ट, फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, इसके साथ क्या हुआ होगा? What do you think could have happened to this person? I haven't examined the patient, so I can't say. At times what happens is that when the stress level is very high and the stress level is going on, and we don't take care of it, and there's something which is known as burnout, in which our brain and our body gets terribly exhausted, and it just gives in. हम तकरीबन 20-25 साल पहले इसके लिए एक टर्म यूज किया करते थे, जैसे हम कहते थे नर्वस ब्रेकडाउन. अब वो ऑब्सोलीट टर्म हो गया है, लेकिन नर्वस ब्रेकडाउन बर्नआउट का एक्सटेंशन था. तो जब आपको बर्नआउट हो रहा होता है तो आपको ये सारी चीजें होती हैं कि योर बॉडी इज टेलिंग यू, हार्ट रेट इज गोइंग अप, एंजाइटी के सिम्टम्स हो रहे हैं, concentration. So these are all the symptoms that are telling you that okay, you need to take a break, or you need to have a balance. But Mansoor, एक बात तो बताएं यार, you've been in this field since last 25 to 30 years, and मुझे बताएं कि is this something that is getting burnt out or exhausted, or as they used to call it, क्या था वो word, breakdown? Is this something that is common these days? यार हाँ, कॉमन होगा. आई थिंक कॉमन होगा. सरफेस पे तो नजर शायद नहीं आता उतना कॉमनली, बिकॉज people, they usually don't open up and talk about these things within the corporate environment. But I wouldn't be surprised अगर मुझे ये कोई कहे आके कि जी 30-35% लोग आजकल they may be suffering from a burnout. इसलिए कि the work can be difficult, right? It can be daunting. It can be demanding sometimes also. And more than often, what the kind of mistake the people do or professionals do is, rather than correcting themselves, they start blaming the environment. Sometimes they blame the corporate culture. Sometimes they blame their line managers. Sometimes a difficult colleague that they have to work with every day. तो मुझे तो समझ में ही आता है कि जब तक until unless
we don't fix it internally, हम organize नहीं करेंगे अपने आप को, work life balance को, ये issue होंगे. तो yes, to answer your question, I think है common होगा काफी. बट मुझे ये बात तो बताएं, we have progressed so much. और मैं जब लाइक 18 साल पहले मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी यूएस में, so we had a very strict rule of working 40 hours a week. Obviously वो हो नहीं पाता था, थोड़ा सा स्ट्रेस आता था, but they have become very strict. And in a very similar way, they used to focus a lot on work-life balance. आप हमारे सिस्टम का जरा बताएं कि क्या हम ये चीज फॉलो करते हैं? क्या हम एचआर को रिपोर्ट कर सकते हैं कि भाई हमें रगड़ा जा रहा है या क्या? अच्छा, मैंने काफी अरसे से पाकिस्तान में कोई तकरीबन 13-14 साल से मैंने काम नहीं किया. थोड़े अरसे के लिए मैंने बीच में काम किया था, लेकिन नहीं एज सच यहाँ पे तो कोई नंबर ऑफ आवर्स एज सच प्रिस्क्राइब्ड नहीं है. 9 से 5 की नौकरी होती है, लेकिन कल्चर आपको पता है कि यहाँ पे ऐसा है. और आई थिंक इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान, इट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड. If your line manager is sitting in the office, the likelihood is that most people. I think it's the entire region. It's entire region or outside the region also. I mean, it's just across the globe. लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा concept जो है work life balance का वो इतना ज्यादा established नहीं. लोगों को rights नहीं मालूम है, और लोगों से मुराद मेरी सिर्फ junior level employees नहीं. I think the CEO level के लोग भी और senior leadership के level के लोग भी, I think they are not. Some places, I mean, they may not be fully appreciative about how important it is for their own productivity, their own organization's productivity. मुझे ये बताइए यार. मैं लेता हूँ आपसे क्वेश्चन. मुझे समझ में आ रहा है कि आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं. मुझे उससे पहले एक बात ये बताइए कि ब्रेन के अंदर क्या हो रहा होता है जब ये बर्न आउट हो रहा होता है आपको 3 महीने से 4 महीने से. What are the chemical changes that is happening in the brain, just in a very layman language people can understand? Yes. यार मैं आपको बात बताऊंगा. जब हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं ना, तो हमारी बॉडी में और ब्रेन में स्टेरॉइड्स निकल रहे होते हैं. ठीक है, दे कीप अस गोइंग. बट ये सडन स्टेरॉइड्स का निकलना, मुसलसल स्टेरॉइड्स का निकलना ना, हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं which are happy chemicals which makes us relaxed, motivated, concentrated, sleep, pleasure. ये जो स्टेरॉइड्स निकलते हैं ना, ये जाके उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिनसे ये केमिकल निकल रहे होते हैं, और ये केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, और उसकी वजह से ना ही सिर्फ हमारा जहन अफेक्ट होता है बल्कि पूरी बॉडी अफेक्ट होती है. एंजाइटी हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी. It can affect the entire body. तो ये शॉर्ट टर्म पे होती है चीजें, या फौरन हो जाती है, या आगे चल के आपको खर्चा होता है इन चीजों का? मतलब देखें, रिस्क के ज्यादा होते हैं वो लोग जो ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, या these things can happen immediately also? No, it depends upon the circumstances. जैसे सपोज करें कि अगर सडन आप एक्सपोजर हो आपका ट्रॉमा से, तो the same thing happens. Exactly the same thing happens, excepting that the burnout doesn't happen. The person goes into a acute stress disorder. But ये है कि आप that is extreme trauma. But अगर आप gradually and slowly उससे स्ट्रेस से गुजर रहे हो और आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन जो है, जो कि बेसिकली कॉर्टिकोस्टेरॉइड है और नॉरएड्रेनालिन है, ये निकलता रहेगा, and there will be no relaxation, there will be no break. तो यस, बर्नआउट होगा, बल्कि बर्नआउट तो पहला होगा, फिर उसके बाद बाकी बॉडी एंड द ब्रेन विल गेट. सही. तो कितने घंटे एक दिन के लिए एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, कितने घंटे एक दिन में आप प्रिस्क्राइब करते हैं कि लोगों को काम करना चाहिए मैक्सिमम? यार देखें, मेरा एक सिंपल फॉर्मूला है. मैं लोगों को कहता हूं कि जो है वो आप 6 से 8 से 9 घंटे सोएं. ठीक है. सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोने जो है आपका ब्रेन रिकवर करता है. ठीक है. देन दूसरी चीज मैं ये कहता हूँ सबको कि 30 to 45 मिनट्स आपने एक्सरसाइज करनी है. बी इट वॉकिंग, बी इट एनी कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज, बी इट योगा, आपने कोई ना कोई एक्सरसाइज करनी है. एंड देन यू नीड टू हैव अ हेल्दी डाइट. अब जहाँ हेल्दी डाइट की बात हो गई, तो मैं ये रेकमेंड करता हूँ, आप अगर गूगल पे भी जाके देखें, there is something which is known as an alkaline diet या Mediterranean diet.
हाँ उसको फॉलो करें और दैट इज बेसिकली एन एनर्जाइजिंग डाइट. सो इफ यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री, बट उसमें यार ये चीज याद रखनी है कि आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास एक्सरसाइज के लिए टाइम. हाँ आपने सुबह जल्दी उठ के टाइम निकालना है, आपने लंच पे टाइम निकालना है, आपने रात पे टाइम निकालना है, काम बिकॉज कितने दिस इज घंटे फॉर यू. काम कितने घंटे घंटे हेल्थी है, मतलब प्रिस्क्रिप्शन क्या है आपकी कि जी 8 घंटे का हमारा टाइम है, 9 से 5 का, तो ये हेल्थी है टाइम, अगर हम 5 तक ही रखें तो बेहतर है, बिल्कुल 5 तक रखें. मतलब अपनी 40 अपने घंटे एक काम वीक को के, इस तरह बैलेंस करें. मतलब 40 घंटे एक वीक के हो गए डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी. 40 घंटे एक वीक के हो गए, 40 hours a week, राइट? दैट्स ओके, कूल कूल, बिल्कुल. जी ठीक है, 6 days of 5 days a week, 5 days a 5 days a week, 40 घंटे, ठीक है ठीक है. week है, अच्छा 5 days a week. अब वो थोड़ा सा स्ट्रेच होके 40 से 43 हो गया, 40. ओके, बट हे, यू नीड, योर बॉडी विल स्टार्ट टेलिंग यू. यस यस. अच्छा बट यार एक, सॉरी आप बोल रहे हैं कुछ, बोलिए बोलिए. नहीं, आप बोले. हाँ, मैं आपसे पूछ रहा था कि अब आपको ये अंदाजा हो गया कि भाई आपको बर्नआउट हो रहा है, आप लैक ऑफ मोटिवेशन भी फील कर रहे हैं, आपकी बॉडी भी आपको बता रही है कि यार बस मेरी बस हो गई है, अब आई कैन नॉट टेक इट एनीमोर, दिस इज मोर देन आई कैन हैंडल. और अब आप या तो आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने आपको कह दिया कि यार यू नीड टू टेक इट इजी, अदरवाइज your body will start taking a toll on this. Maybe you will have a heart complication if you are more than 50 years old and you have other risk factors. Prevention कैसे करनी है, prevent कैसे करना है, बर्न आउट होने से कैसे प्रिवेंट किया जाए? अच्छा, आपने जैसे भी बताया एक्सरसाइज वगैरह, यही चीजें गई है. ये बेसिक 3 चीजें हैं जो आपको प्रिवेंट करेंगी. ठीक है, सही है. ठीक है. अच्छा, हाँ, एक चीज मैं ये भी कहूंगा कि अपनी इम्यूनिटी को रेस करें. ठीक है. एंड आप अपने डॉक्टर से पूछें कि इम्यूनिटी को रेस जो है वो किस तरह किया जाता है, बिकॉज बहुत सारी चीजों हम व्हेन आवर इम्यूनिटी इज लो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, वी आर सब्जेक्टेड टू अ लॉट ऑफ माइनर ट्रिवियल इलनेसेस. हाँ हाँ जो कि हमारी इम्यूनिटी अगर बेहतर हो तो सही है. एंड मेंटल पीस, हाँ. टेल योर फैमिली टू गिव यू मेंटल पीस. Yeah, okay. All right. All right. Fantastic. I think very, very, very helpful. Very helpful. अच्छा, बट यार एट दिस पॉइंट में एक स्टडी बताना चाहूंगा जो कि फिनलैंड में हुई है. इट्स एन एक्सटेंसिव स्टडी, एंड वेरी एक्सटेंसिव स्टडी अबाउट 5,000 पीपल. और उसमें they have been following people middle aged onwards. And उनमें देखा गया है कि अगर वर्क लाइफ बैलेंस ना हो तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि जी आपकी जो वाइटैलिटी, आप में एनर्जी लेवल, वो आपका जो है वो कम हो जाता है. ठीक है. दूसरे ये कि यू एज अर्ली. ओके. जो आपकी नॉन होती है वो जल्दी हो जाती है. Then you get a cognitive decline. आपके ब्रेन का जो सामने वाला हिस्सा है जिसे हम प्रीफ्रंटल लोब कहते हैं, इसमें इसका साइज छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से आप में प्लानिंग करने की कैपेसिटी, मेमोरी की कैपेसिटी, करने की कैपेसिटी ये कम हो जाती है. प्लस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन मेल्स इज कि हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम हो जाते हैं. उसकी वजह से हम जो है वो मस्कुलर मास लूज करने लगते हैं. वी फील डिप्रेस्ड. सो हम हमारे एनवायरनमेंट में इस चीज का एहसास नहीं है कि ये जो वर्क लाइफ बैलेंस अगर हम ना करें तो सेकेंडरी साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं. यप, बिल्कुल ठीक. But Mansoor, you're in a position, I would like to ask you यार, मुझे ये बताएं कि चले हमने मैं एस्टैब्लिश कर रहा हूँ, and I am assuming and you are also like confirming it कि yes, वर्क लाइफ बैलेंस इतना नहीं होता, बट यार होना चाहिए. तो you are being now in a senior position. What would you advise to your colleagues or your juniors कि इसको कैसे अचीव किया जाए? हाँ, I think बहुत important है, और I'm thankful that you actually asked me this question. I want to address this because
I know for a fact that it is possible to achieve that work-life balance. It may not be possible in the beginning at first, but you don't need to, you don't have to give up. You need to keep trying and trying. करना क्या है बेसिकली, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपना प्रोडक्टिव टाइम बढ़ाना है दफ्तर के अंदर, और नॉन प्रोडक्टिव टाइम को आपको कम करना है. ऑब्वियसली दैट्स स्टेटिंग द ऑब्वियस. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट लो हैंगिंग फ्रूट है आपका. एक चीज पूछ सकता हूँ, ये जो हम लंबी लंबी चाय ब्रेक लेते हैं 15 मिनट की, अगर ये ना लें तो प्रोडक्टिव टाइम बढ़ सकता है? बिल्कुल. जैसे चाय ब्रेक हो गई, या जो लोग सिगरेट पीते हैं, उनका हिसाब किताब ये कि जैसे 8 घंटे हैं आपके पास काम करने के, ठीक है ना. 8 घंटे में अगर एक स्मोकर है, एवरेज घंटे में एक भी सिगरेट अगर वो पी रहा है, तो एक सिगरेट का ब्रेक होता है कोई तकरीबन 15 मिनट का, ठीक है ना. तो 15 मिनट का एक सिगरेट ब्रेक आप ले रहे हैं, 8 घंटे के अंदर आपने 120 मिनट के सिगरेट ब्रेक लिए, विच मीन्स दैट यू आर एक्सटेंडिंग 2 more hours. यानी कि 8 घंटे की आपकी जॉब है, उसको आप 10 घंटे की खुद बना रहे हैं. तो सबसे पहले तो आपने ये आपने लो हैंगिंग फ्रूट है सबसे बड़ा, जो कि आपने स्मोकिंग आवर, अगर आप सिगरेट छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं छोड़ सकते हैं सिगरेट, तो आपको 2 घंटे की जगह 1 घंटे कर लीजिए आप. और साथ में आपने काम ये करना है कि आपने अपना जो प्रोडक्टिव टाइम है वो बढ़ाना है. प्रोडक्टिव टाइम कैसे बढ़ सकता है आपका? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने आइडेंटिफाई करनी है, वो ये आइडेंटिफाई करनी है कि आपका गोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, आप कहाँ फिट बैठते हैं उस गोल में, और वो गोल क्या है. उस गोल को आपने अलाइन करना है दोनों के साथ, अपनी टीम के साथ. अगर आप अपनी टीम को मैनेज करते हैं तो उसके साथ आप अलाइन करेंगे, और अपने लाइन मैनेजर के साथ गोल को अलाइन करेंगे. और गोल को अलाइन कर जब आप कर रहे होंगे, तो आप आइडेंटिफाई कर देंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट कि व्हाट आर द बिग टिकट आइटम्स. 3-4 कौन सी प्रायोरिटीज ऐसी हैं जिसपे आपका बॉस, आपका लाइन मैनेजर चाहता है कि आप फोकस करें, और आप ये चाहते हैं कि आप फोकस करें. जब वो प्रायोरिटीज आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो डे इन और डे आउट आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है कि ये जो काम आज मेरी टेबल पे या मेरी प्लेट पे है, इसमें से वो कौन सी एक्टिविटीज हैं आज की जो कि 60 to 80% तक कंट्रीब्यूट कर रही हैं मेरी केपीआई के डिलीवरी में, जो मेरे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, जिनके ऊपर मुझे जज किया जाएगा या मेरी ऑर्गेनाइजेशन को जज किया जाएगा. वो कौन सी एक्टिविटीज है? कुछ ऐसा काम है जो कि मैं वो लेफ्ट ऑफ कर सकता हूँ आज के लिए या नहीं. तो बेसिकली आप ज्यादातर टाइम लगाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के अंदर. एक तो ये हो गई. दूसरी ये चीज हो गई कि जी, जब आपने बिग टिकट आइटम्स आइडेंटिफाई कर लिए, तो आपको ये पता चल गया कि जो 20% रिमेनिंग है वो आपने बाद में करना है, आपने इग्नोर कर सकते. जब आप ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो टाइम स्पेंड एट वर्क है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. वो टाइम आप दीजिए घर पे. जब आप घर पे देंगे तो आप इस तरह की फीडबैक ना दिया करेंगे. किसी दोस्त ने आपको कॉल किया, वो आपसे कह रहा है कि वेयर आर यू नॉट, व्हाई आर यू नॉट कॉलिंग मी, और व्हाई आर यू नॉट शोइंग अप टू द जिम, और आप कह रहे हैं उसको कि जी आई बीन टेरिबली बिजी, which is a very lazy thing to say actually, right? Because if you जिम जाने का तो, आई एम सॉरी टू इंटरवीन, जिम जाने का तो कोई बहाना ही एक्सेप्टेबल नहीं. जिम ना जाने का, ये जिम ना जाने का बहाना एक्सेप्टेबल ही नहीं. हाँ, बिल्कुल. So I think the most important thing is to identify on the big ticket items in the organization, जो कि वो चीजें जो कि 70-80% आपके रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करेंगी. And the most important thing is do not give up. If at once you are unable to crack it, know that you will do it if you keep it as your priority. I've been working for so long. I think I've been through that, and I'm at a stage right now where I can say that I am able to manage my work-life balance quite well. आप pause हो गए या आप your pause? Hello. Yeah, वो थोड़े से हम पॉज हो गए थे. Okay. Can you repeat that, Mansoor, please? कहाँ तक सुना था आपने? मैंने सुना था कि मैं इस पोजीशन पे पहुंच गया हूँ, whereby where I can very confidently, without hesitation, say that I am managed to keep a good balance of work and life. So that's what I yeah, I would like to contribute one thing in the end. Please go ahead. जो मैं अपने पेशेंट्स में बहुत कॉमन देखता हूँ, कॉर्पोरेट पेशेंट्स में बहुत देखता हूँ. तो ये क्या, कुछ ऐसी बातें हैं जिसे वो कहते हैं यार ये मुश्किल काम है, ये हम शाम को कर लेंगे, यार ये मुश्किल काम है, इसको हम कल कर लेंगे. दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन. जी बिल्कुल.
अब वो जितनी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वो स्ट्रेस लेवल कम नहीं होता, वो स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है और वो प्रोलॉन्ग होता है. So would you like I have my take on how to deal with procrastination. What's your take on it? How to deal with procrastination? Look, it is not an easy thing to How do. not to procrastinate? How not to procrastinate? I think it's pretty simple at the same time as to how you can deal with it. But at the same time, if it is ingrained in you that you are a procrastinator, it may be difficult also to manage. But one word of advice is that what you're supposed to do today, you need to do it today. I know it's easier said than done, but I think that's the only way to do it. अच्छा, my take on it, जो हम लोगों को प्रोफेशनली सिखाया जाता है थ्रू साइकोलॉजी, इज दैट लेट्स से आपका जो सबसे डिफिकल्ट काम है वो आपके सबसे 30% ऑफ द वर्क दैट इज देयर. तो सबसे जो डिफिकल्ट काम है ना उसको सबसे पहले उठाएं, गेट डन विद इट, एंड द रेस्ट ऑफ द 60% ऑफ द टाइम यू विल बी रिलैक्स्ड. बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास. आई थिंक इट वाज अ ग्रेट चैट फैसल. ये थोड़ी सी लंबी जरूर, मुझे तो बड़ा मजा आया. Likewise. It was great. So, Same here. All right, then you have a great rest of the evening. Let's catch up again soon. Thank you so much for taking your time. Well, it's your weekend ending and it's my weekend beginning. Yes. So have a great week, and I'll try to have a great weekend. Brilliant. Take it easy. Peace, man. Peace. Take care. Bye. Bye. Bye.